Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we will study about the status of women during early modern Europe, which is a topic of Unit 2 of Cultural Transformation in Early Modern Europe, second semester 4th. So let's start with the introduction. During the early modern period in Europe, roughly spanning from the late 15th to late 18th century, the status of women varied gently depending on factors such as social class, geographic location, and cultural norms. अर्ली मॉडर्न पीरियड जो था यूरोप में, उसके टाइम जो विमेन की स्टेटस थी वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, सच एज़ उनकी सोशल क्लास क्या है, वो किस लोकेशन से बिलोंग करती हैं, और कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं वहाँ के. So, early studies of early modern Europe largely overlooked women as a significant discourse. However, from the 1960s onwards, scholars like John Kelly, Mary Weisner Hanks, Karen O'Brien, and Barbara Taylor shifted scholarly attention towards women's roles and changing status, provided insights into prevalent gender roles. हाउएवर जो स्टडीज़ हैं अर्ली मॉडर्न यूरोप की, वो दिखाती हैं कि काफ़ी ऐसे विमेंस के स्कॉलर्स या फिर सपोर्टर्स थे. फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन कैली एंड ये मैरी वेस्नर हैंक्स. सो इन सब ने जो एक अटेंशन थी लोगों की, वो विमेन के रोल की तरफ काफ़ी ज़्यादा हद तक शिफ्ट करी, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा. While many scholars perceive the early modern period as a time of improvement for women, characterized by developments like the Renaissance, Reformation, and Enlightenment, offering more opportunities and access to education and the public sphere, काफ़ी स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था यूरोप में, उसमें विमेन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए, जो कि रेनेसां रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट के टाइम डेवलपमेंट्स हुए उनकी वजह से. While others like John Kelly argued that the women enjoyed greater freedom and opportunities in the medieval period, they view early modern Europe as a more patriarchal and restrictive, offering limited space for women in public activities. वाइल जो अदर स्कॉलर्स हैं वो मानती हैं कि विमेन काफ़ी ज़्यादा खुश थी या फिर ज़्यादा फ्रीडम को एंजॉय कर पा रही थी मिडिएवल पीरियड में, और जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो उनको पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है उसमें, और विमेन की जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. तो अब हम एक एक करके विमेन की कंडीशंस अलग अलग फील्ड्स में कैसी थी वो देखेंगे. सबसे पहला है लीगल एंड सोशल स्टेटस. Women had limited legal rights and often had to rely on male relatives, father, husband or sons to represent them in legal matters. विमेन की जो लीगल राइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी अर्ली मॉडर्न यूरोप में, और उनको अपने जो मेल रिलेटिव्स या मतलब जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते थे, फादर, हस्बैंड या सन, उन पे रिलाई होना पड़ता था अपने लीगल मैटर्स के लिए. सो वो डिपेंडेंट थी उन लोगों पे, और काफ़ी ज़्यादा जो उनकी राइट्स थी वो लिमिटेड थी. Laws and customs varied across regions, but generally women had few property rights and limited control over their own finances. In case of inheritance, sons typically inherited property over daughters. सो यूरोप में यही होता था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स थी वो भी सन्स को दी जाती थी इंस्टेड ऑफ विमेन, और वुमेन को काफ़ी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी फेस करने पड़ते थे लीगल और सोशल राइट्स के मामले में. सेकंड है मैरिज एंड फैमिली लाइफ. मैरिज वॉज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप एंड विमेन्स रोल वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक स्फीयर. विमेन का जो रोल था वो बस घर तक ही सीमित था, और उनको मतलब जो घर के कोर्स होते थे उनको बस वही करने को बोला जाता था. Women were expected to manage the household, bear children, and provide support to their husbands. Marriages were often arranged for economic or political reasons, and women had little say in choosing their partners. So जो marriages थी वो basically economic और political reasons की वजह से ज़्यादा होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउरी एंड ऑल, एंड वुमेन की जो फ्रीडम थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी इस मैटर में भी.
Third, education and employment. Educational opportunities for women were limited, especially beyond basic literacy and domestic skills. Women from noble or wealthy families might receive some education, often focused on adequate music or religious instruction. However, higher education and participation in professions were typically reserved for men. सो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थी वुमेन के, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लिमिटेड ही थी. जो हाई नोबल फैमिलीज़ या फिर वेल्दी फैमिलीज़ की वुमेन्स थी, वो थोड़ी बहुत एजुकेशन ले लेती थी इन द फील्ड्स ऑफ म्यूज़िक और रिलीजियस फील्ड्स, बट बाकी जो वुमेन थी उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. However, higher education and participation professionals were typically reserved for man. और जो हायर एजुकेशन होती थी वो बस मैन के लिए रिजर्व थी. Fourth, religious and spiritual roles. Women played significant roles within religious institutions, particularly within convents. Convents provided opportunities for women to pursue education, intellectual activities, and religious devotions. Some notable women during this period, such as Teresa of Avila and Hildegard of Bingen, gained renown for their religious writings and leadership within the church. सो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रोल्स में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था विमेंस को रिलीजियस नॉलेज देने में. और जो कुछ नोटेबल वुमेन हैं इस पीरियड की जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है अपनी रिलीजियस राइटिंग्स की वजह से, वो हैं टेरेसा ऑफ एविला एंड हिल्डगार्ड ऑफ बिंगन. नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर. डिस्पाइट सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस, some women managed to excel in artistic and cultural pursuits. Female artists, writers, and musicians emerged during this period, although their opportunities for recognition and professional success were limited compared to men. सो डिस्पाइट ऑफ इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वुमेंस पर, उसके बाद भी कुछ वुमेंस ने अपना आर्टिस्टिक और कल्चरल फील्ड्स में काफ़ी काम करा. और जो फीमेल आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुए थे इस पीरियड में, बट जो उनका रिकॉग्निशन था वो मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मतलब कम ही था. नेक्स्ट है विच हंट्स. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अर्ली मॉडर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ था. सो द अर्ली मॉडर्न पीरियड सॉ द पीक ऑफ द यूरोपियन विच हंट्स, ड्यूरिंग विच थाउजेंड्स ऑफ women and some men were accused of witchcraft and persecuted. While the reasons behind the witch hunts were complex and multifaceted, they reflected broader anxieties about gender, power, and social control. सो जो विच हंट्स का कॉन्सेप्ट है वो अर्ली मॉडर्न यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पीक पर चला गया था और विमेंस को विच बोल के उनको मार दिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंस होता था वो विमेंस को फेस करना पड़ता था. सो ये हमें एक पैट्रियार्की की जो पावर है वो भी दिखाता है और जो वायलेंस वुमेन ने फेस किए थे उन पे भी हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में बताता है. नेक्स्ट है सोशल क्लास एंड रीजनल वेरिएशंस. Women's experiences varied widely depending on their social class and geographical location. Noble women enjoyed more privileges and autonomy compared to peasant women, who often faced harsher life conditions and greater economic hardships. सो जो विमेन का सोशल क्लास था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था उनका जो कंडीशन है वो बताने में. जो वेल्दी फैमिलीज़ की वुमेन्स होती थी या नोबल फैमिलीज़ की, वो एक मोर कंफर्टेबल लाइफ इंजॉय करती थी अगर हम कंपेयर करें उनको जो नॉर्मल पीजेंट वुमेन्स होती थी उनसे तो. And additionally, cultural norms and legal system differed across European regions, leading to diverse experiences for women. जो कल्चरल नॉर्म्स और लीगल सिस्टम था वो भी यूरोप के हर मतलब जगह पर डिफरेंट था, जिस वजह से वुमेन्स को और ज़्यादा मतलब हर रीजन के अलग वुमेन को कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. सो ये था हमारा कंडीशंस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्फेयर्स. अब हम देखेंगे वुमेन इन पब्लिक स्फेयर.
Women in public sphere. Despite the male-centric nature of active politics in Europe, some regions saw female rulers emerge as powerful figures within the ruling elite, challenging traditional political theories that excluded women from discussions on power and sovereignty. So, जो यूरोप का उस टाइम का नेचर यूरोप सोसाइटी का जो उस टाइम नेचर था वो मेल सेंट्रिक था, उसके होने के बावजूद भी जो विमेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में मतलब इमर्ज हुई, और काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रूलर्स थी वो इमर्ज होती हैं अर्ली मॉडर्न यूरोप के टाइम। सो उन्होंने जो उस टाइम की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसको भी चैलेंज करा था, और उसकी वजह से उनको काफ़ी वायलेंस भी फेस करना पड़ा था। While political theorists like Jean Bodin and Robert Filmer deemed female rule unlawful and immoral, the late 17th century witnessed a shift, with some acknowledging women as political beings. This transition often required female rulers to adopt masculine traits, as seen in the praise given to Elizabeth I of England for exhibiting such qualities. So ये कुछ पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे लाइक जीन वॉर्डन एंड रॉबर्ट फिल्मर। सो ये जो विमेन का रूल होता था उसको अनलॉफुल और इमोरल मानते थे, बट जो लेट 17th सेंचुरी थी उसमें विमेन का राइज इन पॉलिटिकल लाइफ भी देखने को मिलता है, और इसका एक एग्जाम्पल हम एलिजाबेथ वन का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन. Despite limitations, women actively engaged in Enlightenment discourse across Europe. They participated in intellectual and political discussions, academia, salons, and other institutions. Women from upper classes embraced the egalitarian ethos of Enlightenment more than their male counterparts. So despite all the violence and criticism they faced, women ने जो इनलाइटनमेंट के टाइम जो भी सारे सिचुएशन चल रही थी उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करा, और जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे सैलॉन्स में, जो उनकी मीटिंग्स होती थी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है विमेन का। Evolution of feminist thought. Women writers like Mary Estelle and Mary Wollstonecraft questioned unequal power dynamics within marriage and advocated for equal educational opportunities. सो ये जो विमेन राइटर्स थी इन्होंने अनइक्वल पावर डायनेमिक्स और जो मैरिज में जो अनइक्वल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को मिलती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनको चैलेंज करा। Their works laid the foundation for feminist thought and inspired women to enter traditionally male-dominated fields. So उनके जो वर्क्स थे उन्होंने बहुत ही सारे जो women थी उनको इंस्पायर भी करा, और जो ये मेल डोमिनेटेड फील्ड थी इसमें एंटर करने का मोटिवेशन भी दिया। Women such as Emily Dew Chatelet contributed to the advancement of science, fostering greater interest in the subject. Next है role of women in French salons. Salons in the late 17th and 18th century France were pivotal in fostering Enlightenment ideas by providing a space for intellectual exchange and debates among diverse social circles, thus contributing to the development of a democratic public spheres. जो फ्रेंच सैलॉन्स होते थे उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करा, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह होती थी वो सैलॉन्स में ही होती थी। विमेंस सैलॉन्स के बहाने जा के अपने जो पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह होते थे उनको शेयर करती थी, और वो भी वहाँ से ज़्यादा मतलब सैलॉन से काफ़ी ज़्यादा उनके थॉट्स इवॉल्व हुए, और उसी वजह से जो विमेन पॉलिटिकल फील्ड्स में आई उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। नेक्स्ट है डिक्लाइन एंड क्रिटिसिज्म. इसमें हम फ्रेंच सैलॉन्स का जो क्रिटिसिज्म था उसको भी देखेंगे. सो डिस्पाइट द इनिशियल सिग्निफिकेंस, सैलॉन्स फेस क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द लेट 18th century, especially during the French Revolution, as they came to be viewed as outdated and frivolous despite their role in popularizing key revolutionary concepts like liberty, egalitarian and tolerance. So जो लेट सेंचुरीज़ में फ्रेंच जो सैलॉन्स होते थे उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड देखे जाने लगे थे, और उनका रोल जो था वो ख़त्म सा हो गया था। मतलब जो उनसे पॉलिटिकल थॉट्स का इवोल्यूशन होता था उसको कोई देख नहीं रहा था, उनको आउटडेटेड मानने लगा था।
सो ये था हमारा रोल ऑफ वुमेन या कंडीशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फेयर. सो if you guys find this video informative, then please like, share and subscribe to this channel, and also press the bell icon for more such videos. So thank you so much for watching.